Okay. Good morning, Pratiksha, Pallavi, and who one is again one of. Okay, only two out of you. Okay, let's start. Our topic is electrophoresis. Electrophoresis, it is an analytical method frequently used in a molecular biology and the medicines. It is applied for a separation and characterization of protein, nucleic acid, and subcellular size particle like viruses and the small organelles. इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जिसके अंदर हम सेपरेशन करते हैं. फ्रिक्वेंटली एनालिटिकल मेथड है जिसमें से हम सेपरेशन टेक्निक और प्यूरिफिकेशन के लिए मोस्टली हम इसका यूज करते हैं. और because of this instrument we can separate the different molecules like a protein, nucleic acid और subcellular particles जैसे वायरस और small organelles को भी हम यहाँ पे कैरेक्टराइज कर सकते हैं by using this technique. Okay, the basic principle behind that, the charged particle of the sample migrate in a applied electric field. तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो बताता है कि यहाँ पे जो चार्ज मॉलिक्यूल है, हमारे जो भी मॉलिक्यूल्स चार्ज पार्टिकल्स है, having a charge molecules, they are separated based because of the electric field. Okay, and they are separated because of their charges only. Okay, so here if conduct in a solution if conducted in a solution, sample are separated according to their surface net charge and density. Okay, then electrophoresis was first performed by क्यूक्ले इन 1861. इसकी जो फर्स्ट डिस्कवरी की थी क्यूक्ले साइंटिस्ट ने इन 1861. ओके, okay, so many important biomolecules in this solution acquired either the positive or either negative charge. हमारे बॉडी के अंदर जो भी बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है, दे आर हैविंग आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव चार्ज. ओके, तो कोई भी चार्ज उनके ऊपर प्रेजेंट है और हम उस चार्ज के बेसिस पे ही यहाँ पे सेपरेशन कैरिड आउट करेंगे बाय यूजिंग दिस प्रोसेस. And the acquisition of such charges depend on the nature of particle and the solvent which is used to dissolve which such proteins. यहाँ पे हमारा नेचर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर हम डिपेंड करता है कि हमारा यहाँ पे प्रोटीन के ऊपर चार्ज क्या होगा. मीन्स कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन, लाइक प्रोटीन का कंपोजिशन क्या है, तो डिफरेंट अमीनो एसिड्स. तो अमीनो एसिड्स के ऊपर जो चार्जेस होगा उसके बेसिस पे हमारा एक पर्टिकुलर प्रोटीन के ऊपर एक पर्टिकुलर चार्ज वहाँ पे आएगा. एंड सेकेंड, charge is also depend on the presence of a solvent which in which we dissolve our protein sample. Means हमने जो भी सैंपल यूज किया और जो भी बफर यूज किया है फॉर टू डिसॉल्व दैट प्रोटीन इन दैट, तो उस बफर का पीएच क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि प्रोटीन के ऊपर चार्ज क्या है. जैसे हमने लास्ट एक दो लेक्चरों में पढ़ा है कि अगर हमने बफर का पीएच चेंज किया तो प्रोटीन के ऊपर का चार्ज भी चेंज होगा. तो charge is depend on the first composition or the particles which present in that protein, and second, charge is also based on the solvent in which we dissolve our protein molecule. Okay, तो इन दोनों के ऊपर हमारा चार्ज डिपेंड है. Okay, and according to that composition and the mix solvent, we decided our charge of protein, and along with that we separate them in the electrophoresis. Okay, the electrophoresis rate means उसकी जो molecules की speed है, mobility है, it's depend on the charge by mass ratio. जो mobility है means हमारा जो भी molecule है वो separate होगा, तो separation के लिए जो उनकी speed है, it is depend on the size of the molecule. ओके, एक तो चार्ज तो चार्ज के बेसिस पे सेपरेशन हो रहा है. मींस चार्ज क्या करेगा, हमें वहां पे मोबिलिटी की डायरेक्शन शो करेगा. अगर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा और पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव की तरफ मूव करेगा. चार्ज हमें डायरेक्शन देगा टू फॉर द मोबिलिटी, बट मोबिलिटी की स्पीड किस ऊपर डिपेंड करेगी, बेस्ड ऑन देयर मास. ओके, तो पार्टिकल्स की और प्रोटीन्स की या फिर जो भी हमारा यहाँ पे बायोमोलिक्यूल है, उस बायोमोलिक्यूल की
साइज ऑफ मॉलिक्यूलर वेट जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा मोबिलिटी रेट और इलेक्ट्रोफोरेसिस रेट. If two molecules having the same charge, they might not migrate together because they are different in a molecular weight. सेम वैसे ही चार्ज हमें क्या दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है. डायरेक्शन तो हमारे पास सिर्फ दो ही है, मीन्स एक जाएगा टूवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक जाएगा टूवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड. मीन्स डायरेक्शन दो है, बट हमारे यहाँ पे पार्टिकल सेम स्पीड से कब वहां पे मूव करेंगे, जब दोनों की चार्जेस एंड मास दोनों जब इक्वल होगा तभी वो एट अ प्लेस पे बैंड फॉर्म करेंगे. और बट व्हेन the charges is same on two proteins, they are not compulsory to form a spot at a one point. Okay, why? Because they having a different molecular weight. अगर दो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट अलग है बट चार्जेस सेम है तो वो दोनों भी क्या हो सकते हैं, अलग अलग बैंड फॉर्म कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द देयर चार्ज एंड मास रेशियो. ओके, तो यहाँ पर हमें मास, अभी यहाँ पे जो माइग्रेशन स्पीड की बात की है, तो माइग्रेशन स्पीड इज आल्सो डिपेंड ऑन द चार्ज एंड मास रेशियो. यहाँ पे चार्ज के साथ उसका मास क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. ओके, तो यहाँ पे जो स्मॉलर साइज पार्टिकल है दे आर मूविंग स्लोवर, स्मॉलर साइज पार्टिकल मूव फास्टर देन द heavy weight or a heavy molecular weight molecule. Okay, heavy molecular weight molecules run slowly as compared to a low molecular weight molecule. Okay, there are different types of electrophoresis. Electrophoresis की बहुत सारे types हैं. According to that, in our syllabus there are only the zone electrophoresis was there, but उसके अलावा भी free electrophoresis होता है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रोफोरेसिस की भी दो टाइप्स है. दैट इज द माइक्रो इलेक्ट्रोफोरेसिस व्हिच carried out in a capillary tubes like capillary tubes. Okay, and the moving boundary, they are also performed in a capillary tubes. Okay, these two electrophoresis are not in our syllabus. We are focused on a zone electrophoresis type of electrophoresis. Okay, in a zone electrophoresis there are three different types. There are the paper electrophoresis, second one is cellulose acetate electrophoresis, and third one is the gel electrophoresis. Okay, so in our syllabus we discuss these three electrophoresis types. Okay, हम इन तीनों में से सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे जो पेपर एंड सेलुलोज एसिटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस है, दिस टू आर अ वेरी रेयरली यूज्ड बिकॉज इन अ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस दे आर शोइंग अ वेरी शार्प बैंड्स और रिजोल्यूशन in the gel electrophoresis, but cellulose and paper electrophoresis are not showing a particular or specific bands as compared to gel. But paper and cellulose acetate electrophoresis are less expensive than the gel electrophoresis. Gel electrophoresis is a very expensive method as compared to these two. Okay. Okay, then our first electrophoresis is the paper electrophoresis. Paper electrophoresis, it is a technique in which it is a similar as our paper chromatography. सेम जैसे कि हम पेपर क्रोमेटोग्राफी करते हैं एंड देन जेल क्रोमेटोग्राफी करते हैं, जैसे इन दोनों में जो डिफरेंस है सेम वैसे यहाँ पे पेपर एंड दी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डिफरेंस है. मीन्स हम इलेक्ट्रोफोरेसिस जो टेक्निक है, मीन्स जो चार्ज एंड मास बेसिस सेपरेशन है वो कैरिड आउट करेंगे बट ऑन पेपर करेंगे. ओके, this technique of a paper electrophoresis is a simple and inexpensive and required only a micro quantity of a plasma for a separation. Okay, small amount of requirement है यहाँ पे और less expensive है. Okay, the support medium here we used as only the filter papers. Okay, normal Whatman filter paper हम use करते हैं. Whatman filter paper number 3 पेपर हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर दी पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस.
The electrophoretic apparatus it is the simplest form, consists of a two trough to contain a buffer solution through which the electric current is passed. ओके तो हम यहाँ पर सिंपल दो ट्रफ बनाएंगे हमारे बफर सॉल्यूशन में विच द इलेक्ट्रिक करंट इज पास मीन्स नॉर्मली जैसे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस apparatus देखेंगे आगे उसके अंदर आपको समझ में आएगा कि हमें यहाँ पे पेपर रखना कहाँ पर है और उसके अंदर ट्रफ कौन सा है. Okay, then frequently used the paper electrophoresis is frequently used in isolating proteins, amino acid and the oligopeptides. Okay, तो here first हम discuss करेंगे about the filter paper. It is act as an inert support medium for a separation of a sample by applying as a potential gradient. The most common used paper is made up of a 95% cellulose and has a fixed pore size. हम यहाँ पे जो नॉर्मली यूज करते हैं जो कि मैंने पहले ही नाम बताया आपको वॉटमन फिल्टर पेपर नंबर 3 जो हम यहाँ पे मोस्टली यूज करते हैं. इट इज अ मेड अप ऑफ 95% cellulose. Okay, and they are having a fixed pore size. Here pore size is a very important for the separation to achieve this separation of a biomolecule. हमारा जो यहाँ पे सेपरेशन होता है और रन होता है हमारे यहाँ पे पार्टिकल्स का इट इज टोटली डिपेंड ऑन द पोर साइज ऑफ द मॉलिक्यूल. ओके, और जो हम फ्यूचर में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ेंगे उसके अंदर भी आपको समझ में आएगा कि हम डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जेल यूज करते हैं बिकॉज वी वांट टू प्रिपेयर अ डिफरेंट पोर साइज. हमें अलग अलग पोर साइज बनाने के लिए हम यहाँ पे अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन का जेल यूज करते हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन टू सेपरेट अ मॉलिक्यूल. पोर साइज जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतने बड़े मॉलिक्यूल हमें छोटे मॉलिक्यूल्स को अगर सेपरेट करना है तो हमें पोर साइज भी क्या करनी पड़ेगी तो स्मॉल साइज की पोर्स हमें वहाँ पे यूज करनी पड़ेगी. अगर हमारे पोर साइज बड़े हैं तो हमें बड़ा मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल यूज करने पड़ेंगे फॉर दी सेपरेशन. ओके, Whatman filter paper which are used for chromatography can also be used for a electrophoresis. मैंने आपको पहले ही बताया क्रोमेटोग्राफी की जैसे ही ये टेक्निक है तो हम वाटमन फिल्टर पेपर जो हम क्रोमेटोग्राफी के लिए यूज करते हैं सेम पेपर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए भी यूज कर सकते हैं. Okay, then another apparatus for the electrophoresis are the electrophoretic unit and the power pack. These two are the important for the electrophoresis process because the power pack is required for the provide a voltage or a direct current to the our buffer. इन बफर जो इलेक्ट्रोड हम यहाँ पे ऐड डालने वाले हैं तो उसको एक पर्टिकुलर वोल्टेज ऑफ लाइट करंट चाहिए. दैट वोल्टेज इज गिवन बाय द मेंटेन बाय द आवर पावर पॉइंट. Okay, power pack is provided stabilizer, direct current and the control both voltage and the current output. It maintain our current at a particular voltage. Okay, यहाँ पे हमारा हम वोल्टेज 0 to 500 वोल्ट के बीच में रेंज कुछ भी ले सकते हैं बट इट इज मेंटेन एट इन अ वन पर्टिकुलर वोल्ट पर. ओके, तो यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर वोल्ट यहाँ पे मेंटेन करना है फॉर अ होल इलेक्ट्रोफोरेटिक रन. अगर जो भी हमारा 45 मिनट्स का रन होता है ओके इट इज नियरली रिक्वायर्ड 45 मिनट्स फॉर अ वन रन और इस 45 मिनट्स में हमें एक पर्टिकुलर वोल्टेज का करंट यहाँ पे अप्लाई करना है. एक पर्टिकुलर वोल्टेज मेंटेन करने के लिए हमें यहाँ पे पावर पैक का यूज हम करते हैं. ओके, तो इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर अभी चैम्बर और जो यूनिट है हमारा इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट है इस यूनिट के अंदर क्या क्या होता है तो इट्स कंटेन टू इलेक्ट्रोड्स, वन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और वन नेगेटिव इलेक्ट्रोड. देयर नेम आर द कैथोड इलेक्ट्रोड और एनोड इलेक्ट्रोड. सेकेंड अ बफर रिजर्वायर जिसके अंदर हम हमारा बफर ऐड करते जो हमारा बफर है. देन सपोर्ट फॉर अ पेपर, हम यहाँ पे पेपर के लिए एक सपोर्ट मीडियम और स्टेज लाइक वहाँ पे एपरेटस में ही बना हुआ है. अगर वो नहीं है तो हमें वहाँ पे एक ग्लास स्लैब रखनी पड़ती है जो कि वहाँ पे स्टेज का काम करेगा. ओके, एंड देन दी अ ट्रांसपेरेंट इंसुलेटिंग कवर और एक उनको कवर करने के लिए
क्योंकि ड्यूरिंग दी होल प्रोसेस और ड्यूरिंग दी इलेक्ट्रोफोरेटिक रन, जो भी रन हो रहा है तो उस टाइम पे क्या होगा, वहां पे हीट जनरेट होगी, करंट अप्लाई कर रहे हैं हम उस बफर में, तो करंट क्या करेगा, तो वहां पे हीट जनरेट करेगा। अब बिकॉज ऑफ हीट क्या हो सकता है, तो हमारे बफर में जो वाटर मॉलिक्यूल है इट विल बी इवोपरेट। अगर वो इवोपरेट होगा तो हमारी बफर की अमाउंट क्या हो जाती है, डिक्रीज होगी, और इट मे बी कॉन्सेंट्रेट। ओके, दैट वाज नॉट गुड फॉर आवर प्रोसेस। इसलिए हमें वहां पे इवोपरेशन अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है, उसको एक पर्टिकुलर ट्रांसपेरेंट इंसुलेटिंग कवर से कवर करना है। ओके, लुक एट इन दिस डायग्राम, यहाँ पर उन्होंने ये, इट इज अ ओल्ड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेटिक। अभी हमारा रिसेंटली, हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे हमारा जो रिसेंट टाइप का इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर है वो कैसा है, बट पहले कैसे यूज करते थे, तो यहाँ पे दो अलग अलग ट्रे यूज करते थे फॉर अ डिफरेंट इलेक्ट्रोफोरेटिक रिजर्व, सॉरी बफर रिजर्वायर के लिए हम यहाँ पे दो अलग अलग ट्रेज यूज करते थे, और दोनों के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के लिए अलग अलग वहाँ पे कनेक्शंस रहते थे बाय यूजिंग अ नॉर्मल वायर्स। ओके, देन हम वहाँ पे बीच में एक स्टैंड क्रिएट करते थे और उसके ऊपर हमारा फिल्टर पेपर रखते थे, और फिल्टर पेपर के ऊपर भी हम हमारा फिल्टर पेपर उड़े ना या फिर उसको कोई डिस्टर्ब ना करे करके हम उसके ऊपर भी एक ग्लास स्लाइड रखते थे फॉर अ हैवी वेट ऑन दैट पेपर। ओके, एंड हमारा एक चीज इस पे ये ध्यान रखनी है, जो हम पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो हमारा पेपर फ्रॉम बोथ साइड इट टीप ऑन अ बोथ रिजर्वायर। ओके, एक साइड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड वाले जो बफर रिजर्वायर है उसके अंदर डीप होना चाहिए, और दूसरे साइड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के अंदर वो डीप होना चाहिए। ओके, तो पेपर पूरी तरह से डीप होगा तभी वहां पे प्रॉपरली इलेक्ट्रोफोरेटिक रन जो है वो प्रॉपरली होगा। ओके, देन दिस इज दी अवर न्यू स्टाइल, और जो भी हम हमारे लैब में यूज करते हैं उस टाइप का ये इलेक्ट्रोड और हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का चैम्बर है, जिसके अंदर ऑलरेडी स्टेज जो है वो बना हुआ है, और दो रिजर्वायर के लिए, बफर रिजर्वायर के लिए जो स्पेस दिया है वो इसमें ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। ओके, और इसके अंदर इन बिल्ट मीन्स नेकेड वायर से तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोड नहीं दिख रहे, बट इसके अंदर एक स्मॉल वायर ऑलरेडी फिट है, जो कि यहाँ पर रेड एंड ब्लैक ये जो लाइन है इसके ऊपर वहां पे वायर भी दिख रहा है, बट इट इज नॉट इन अ नेकेड मीन्स अगर अगर कोई एक्सीडेंट वाले चांसेस जो है वो यहाँ पे लेस होंगे। ओके, तो ये हमारे लैब में जैसा इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर है वो इसके इमेजेस है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। ओके, जस्ट मिनट।